Assalamu alaikum dear students. Here I am, your maths teacher from IVS school. Today we are going to start a new session, new academic session for the year 2021 and 22. Now here are some instructions. Okay, don't raise hand during teaching. Ask question at the end of the teaching. Use hand free if you are using mobile phone and headphone for the computer use. Feed your ID and password properly with your name and class. Take care of time for attending the class. Home tasks should be done in your fair copy of the subject. If there is any disconnectivity during the teaching, try to join again within a 5 to 10 minutes. Okay, now students, here's the lesson number 1. Chapter number 1 sets is on page number 1 to page number 18. Now, here are the topics of the day. Okay, define sets, modifications of a set, notations and element of a set, representation of a set, types of sets, subset and superset, proper and improper sets, and equality of sets. Now, firstly, we have to discuss the definition of sets. Okay, a set is a collection of well-defined and distinct objects. I repeat, students, a set is a collection of well-defined and distinct objects. What is the meaning of well-defined? Here we have well-defined means it must be absolutely clear that which object belongs to the set and which does not. Now, what is the meaning of distinct objects? Distinct does not mean just dissimilar. Similar objects may be included in the set as many times as they actually occur. Okay, students, here's the definition of sets. Now we're moving towards the next topic, which is, okay, here's an example for the sets. यहाँ से आप इसको जरा और अच्छी तरीके से समझ सकेंगे कि हम sets को कैसे define कर सकते हैं. Okay, a set is a collection of things, just like for example, the items you wear is a set. These includes hat, shirt, jackets, or pants, and so on. You write set inside curly brackets like this: hat, shirt, jackets, and pants, and etc. This means that the items you wear also include in a set, but we write the set inside the curly brackets. We use the brackets which are curly brackets or braces, we say that. Okay, students, the next one is modification of a set. How we modify the sets? There are two ways right here. The collection of one single object is also a set. अगर आपको याद हो कि हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में जिस तरह से आपको यहाँ दिखाया कि हमने यहाँ पर हेड लिया, शर्ट ली, जैकेट्स एंड पैंट एंड सो ऑन, हमने यहाँ पर मोर देन 3 और 4 ऑब्जेक्ट्स की बात की. बट आपको मॉडिफिकेशन में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ वन सिंगल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अ सेट. इट्स मीन दैट कि अगर आपके सेट में वन सिंगल ऑब्जेक्ट भी होता है तो वो भी हमारे पास सेट कहलाता है. ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो सिर्फ 3, 4 या मोर देन 1, 2, 3, 4 आपको थिंग्स चाहिए होंगी. आपको यहाँ पर ओनली वन थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेट. Okay, the second one is a collection in which there is not even a single element is also a set. अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है कि आप कहेंगे नहीं सेट में हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए. नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता. अ कलेक्शन इन विच देयर इज नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट इज आल्सो अ सेट. इसका मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई सेट ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा, सपोज दैट कि इस वक्त अगर बात की जाए तो आपको सबको पता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. ठीक, आपसे अगर मैं कहूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने जैकेट्स वेयर की हुई हैं, तो ऑब्वियस कि आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसने जैकेट वेयर की हुई होगी. लेकिन ये भी हमारे पास एज ए कलेक्शन काउंट होगा, एज ए सेट काउंट होगा. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन इज द नोटेशंस ऑफ अ सेट. हाउ वी डिनोटेड अ सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, just like capital A, B, and capital X, Y, Z, and so on. Okay, the members of a set are usually denoted by small a, B, C, and up to X, Y, Z. Okay, students.
कैसे कि हम यहाँ पर किस तरह आपको बताएंगे कि सेट जो डिनोट होता है, यानी कि हम सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर्स से करते हैं। जस्ट लाइक हम अभी आगे आपको दिखाएंगे कि सेट्स को हम किस तरह लिखते हैं, किस तरह उनको डिनोट करते हैं, तो हम उनको कैपिटल लेटर्स से जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि कैपिटल लेटर्स आर यूज फॉर द डोनेशन ऑफ द सेट एंड द स्मॉल लेटर्स आर यूज एज ए मेंबर ऑफ अ सेट. इफ वी हैव अ member just like small abc, then we write in a small letters. Okay student, there is an example here. These are curly brackets, and inside the curly brackets there are right 3 numbers and up to so on, just like 3, 6, 91 and up to so on. Okay, these numbers which are right in the curly brackets are called the elements of a set. ओके, हियर वी राइट एलिमेंट और मेंबर. यहाँ पर हम इन नंबर्स को, और या यहाँ अल्फाबेट्स भी लिखे हो सकते थे या यहाँ पर कुछ और भी लिखा हो सकता था, तो हम उसको किस तरह से शो करते हैं, हम उसको एलिमेंट्स भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं. यहाँ मैंने मेंशन कर दिया स्टूडेंट्स इस बात को कि एलिमेंट और मेंबर्स मीन द सेम थिंग. ओके, हियर वी हैव 3 डॉट्स. 3 डॉट्स का क्या मतलब है? अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डॉट है और उसके बाद एक्स वाई जेड, इट्स मीन दैट कि रिमेनिंग जो यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेट्स हैं वो इसमें इंक्लूड है. फ्रॉम द सी के बाद जैसे आपको पता है कि डी आएगा, डी ई एफ जी एन अप टू एक्स वाई जेड, आखिर के हमने 3 लेटर्स शो किए. इसका मकसद है कि रिमेनिंग जितने भी मिडिल में यहाँ पर अल्फाबेट्स हैं वो आपके सारे इंक्लूड हैं इसके अंदर. इसी तरह से हमने यहाँ भी कुछ डॉट शो किए हैं जो कि यही शो कर रहे हैं कि रिमेनिंग एलिमेंट्स विद इन द दीज आर इंक्लूडेड हियर. Okay students, these 3 dots mean goes on forever or infinite. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ मैंने आपको डॉट शो किए हैं, लेकिन डॉट शोज करने के बाद मैंने एक्स वाई जेड दिखाया. सबको ये बात पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं, क्योंकि इतनी जगह नहीं है हमारे पास, ना इतना टाइम होता है कि हम 26 के 26 लेटर्स यहाँ दिखाएं. इसलिए हम थोड़ा सा उसको शॉर्ट करते हैं. हम स्टार्टिंग के 2 और 3 लेटर्स को शो करते हैं, उसके बाद सम डॉट शो करते हैं, एंड देन लास्ट के 2 और 3 लेटर्स और 1 लेटर भी आप शो कर सकते हैं. इसका ये मकसद होता है कि उन दोनों के दरमियान जो गैप आ रहा है उसमें रिमेनिंग जितने भी अल्फाबेट्स, जितने भी नंबर्स इंक्लूड होते हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व है. इसी तरह से मेंबर्स में भी हमने सेम यही चीज शो की है, लेकिन अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पर 3, 6, 91 एंड 3 डॉट्स शो हुए हैं. ये 3 डॉट्स के बाद कोई नंबर, कोई अल्फाबेट आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा और सेट यहाँ पर क्लोज हो गया. तो ये जो 3 डॉट्स शो हुए हैं इसका मकसद है कि 3 डॉट्स मीन गोज फॉर एवर और इनफाइनाइट. इसका मकसद है कि हमें नहीं पता कि नंबर कहाँ जाके एंड हो रहा है या इसका एंडिंग नंबर कौन सा है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 डॉट्स को शो किया है स्टूडेंट्स. ओके, होपफुली जब आप आगे मजीद एक्सरसाइज करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मजीद और क्लियर हो जाएगा कि हम ये 3 डॉट्स क्यों शो करते हैं और ये डॉट्स क्यों शो करते हैं. Now student, move towards the next topic, which is the elements of a set. Here we discuss the elements of a set. We know that a set is a collection of well defined and distinct objects. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक सेट जो है उनके well defined और distinct objects पर बेस करता है. Now each object is called an element or a member. अभी मैंने आप लास्ट वाली एग्जाम्पल में भी ये बात बताई कि कर्ली ब्रैकेट्स, इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स जो वेरिएबल्स या जो अल्फाबेट्स कहेंगे आप उसको या नंबर्स कहेंगे जो वो लिखे होते हैं, हम उनको एलिमेंट्स भी कहते हैं समटाइम्स और उसको मेंबर्स भी कहते हैं. Okay, for example, here we have an example just like capital A is equals to 1, 2, 3 and 4. Okay, last time जो हमने जो चीज देखी वहां पर देखिए यहाँ सब चीज आपको ये क्लियर हो रही है किस तरीके से कि हमने नोटेशंस में देखा था कि कैपिटल अल्फाबेट्स जो है वो किसी भी सेट को डिनोट करते हैं. जस्ट लाइक दिस कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 and 4 here. Okay, now students, this A is a set and 1, 2, 3 are its members are you also called they are elements. Okay, if 1 is a member of A, then we write 1 belongs to A. अब यहाँ पर थोड़ा सा ये सिंबल आपके लिए न्यू होगा, मे बी पॉसिबल है ये थोड़ा सा ई की तरह से बना है या सी की तरह बना समझने, और इसमें ये लाइन कंसीडर हुई. दिस सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग्स टू. ये कब बिलोंग्स टू कहलाता है? जब आप मैथ्स की बात कर रहे हो, जब आप सेट्स की बात कर रहे हो. ठीक है, इन मैथमेटिक्स दिस सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग्स टू. आगे मैं आपको सिंबल्स भी दिखाऊंगी और उनके फुल फॉर्म भी दिखाऊंगी कि हम उसको जो है सिंबल्स को किस तरह से कंसीडर करते हैं. यहाँ पर क्या बात की जा रही है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 इज बिलोंग्स टू दिस ए सेट. इस तरह से अगर आप यहाँ समझिए इस एग्जाम्पल के अंदर, तो यहाँ पर आपको शो हुआ हुआ कि 1 इज अ मेंबर ऑफ ए. अब आप इतनी बड़ी लाइन लिखें यहाँ पर कि इफ 1 इज अ मेंबर ऑफ ए, और अगर आप बताना चाह रहे हैं कि 2 इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ए, तो आप एक पूरी लंबी लाइन लिखोगे. बट इन मैथमेटिक्स वी हैव टू शॉर्ट देम एंड वी राइट विद द सिंबल्स एंड द नंबर्स एंड अल्फाबेट्स. सो हियर वी राइट 1 belongs to set A, just like this, 1 belongs to A.
सिंपल आपने यहाँ पर 3 लेटर्स में 3 फॉर्म में आपने यहाँ पर लिखा दिखा दिया कि 1 जो है वो बिलोंग करता है ए से। जस्ट लाइक मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ बताइए, इसलिए मैंने 1 शो किया हुआ है। जबकि अगर आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एज यू सी कि यहाँ पर मेरे पास ब्रैकेट्स में और ए सेट के अंदर कौन कौन से मेंबर या कौन कौन से एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 भी शो हुआ है, 2 भी शो हुआ है, 3 भी शो हुआ है, 4 भी शो हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ बात करोगे मिस के 5 इज बिलोंग्स टू ए, नो 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ सेट में 5 नहीं नजर आ रहा। Okay students, as you see 1 is belongs to A, we also write that 2 is belongs to A and 3 is also belongs to A and 4 is also belongs to A, but not the other numbers are belongs to A, but because we are not saying the other numbers are included in this set. Okay students, we move towards the next topic, which is the representation of a set. Okay, अभी तो मैंने आपको बेसिक सेट्स बताए कि सेट्स को हमने किस तरह लिखते हैं, उसमें एलिमेंट्स किसे कहते हैं और उसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स यूज होते हैं. नाउ वी हैव टू डिवाइड द रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट इनटू 2 वे. द फर्स्ट वे इज टेबुलर मेथड. Now, what is a tabular method? The members of a set are written within the braces and they are separated from each other by commas. अभी तक जो आपने जो चीज देखी वो सब टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ था. यानी कि कोई भी नंबर्स आपके पास लिखे हो 1 2 3 4 और आपके पास ABC लिखा हुआ हो, यानी कि वो ब्रेसेस के अंदर होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं और उनको सेपरेट किया जाता है कॉमास से. तो वो फॉर्म हमारे पास सेट्स की क्या कहलाता है? टेबुलर मेथड कहलाता है. Okay, the second method or the second way to describe to represent a set is the descriptive method. Now, इसमें हम इस मेथड में क्या करते हैं? Instead of writing the actual members of a set, we describe it by the means of statement. Right within the braces. Same उसी तरह से हम इसमें भी काम करते हैं कि हम ब्रेसेस के अंदर अब इस टाइम बजाय नंबर्स को लिखने के बजाय अल्फाबेट्स को लिखने के हम उस सेट को जो है वो इन द स्टेटमेंट फॉर्म लिखते हैं. किस तरह से लिखेंगे अभी हम आपको आगे बताते हैं. आपके पास बुक में भी इसकी एग्जाम्पल मौजूद है. ओके स्टूडेंट्स, here we have moved towards the example of these 2 ways, just like that. ये आपके पास बुक में पेज नंबर 5 पर है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो अपने पास. आपके पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें टेबुलर फॉर्म दिखाया हुआ है एक तरफ और एक तरफ आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मेंशन की हुई है. ओके, क्या करेंगे इसमें हम? अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि टेबुलर फॉर्म में हम सेट्स को किस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं स्टूडेंट, एज वी नो दैट द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर. एज यू सी स्टूडेंट्स, दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N इज इक्वल्स टू नाउ 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन. क्यों हमने यहाँ पर सो ऑन किया? बिकॉज दिस सेट इज इंक्लूडेड ऑल नेचुरल नंबर्स. अगर आपने नेचुरल काउंटिंग स्टूडेंट्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि नेचुरल काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 और ये कहाँ एंड होगी ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर डॉट शो किए. डॉट शो मीन्स दे आर गो ऑन और द फॉर एवर. ओके, इसी सेट को अगर हम इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मेंशन करना चाहें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको इस तरह से शो करेंगे कि n इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इन्होंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नंबर शो की है और यहीं पर अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट हमने यहाँ पर सेट को लिखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और हम इसको इस तरह भी लिखते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ओके, द सेकंड सेट इज W, capital W is equals to 0 1 2 3 and up to so on. Now what is capital W? Capital W is representing the set of whole numbers. Whole numbers are starting from 0 and end ये कहीं पर भी end हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर again dots को show किया है students. Now here we write the whole number in a tabular, the whole number sets in a tabular form. How we write? The capital W representing the whole number sets is equals to 0 1 2 3 and up to so on. Okay, these numbers are separated by the commas and in the last where the counting is go on, so we write there 3 dots or the multiple of 3 dots, just like 3 6 9, just like that. ओके स्टूडेंट, अगर हम इसी सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे? हियर वी राइट द W इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स. ओके, द थर्ड सेट इज Z इज इक्वल्स टू. ओके, अगर आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये सेट हमारे पास चेंज है. क्यों? इसमें ये सेट हमारे पास एक्चुअली कहलाता है स्टूडेंट इंटीजर्स. दीज आर कॉल्ड द इंटीजर्स. ओके, इन इंटीजर्स वी हैव 2 kinds of integers, just like the positive integers and the negative integers. Positive integers are those just like 0 1 2 3 and up to so on, and the negative integers are -1 -2 -3 and up to so on.
सेम इस तरह से होता है जैसे आपके पास होल नंबर कंसीडर है या नेचुरल नंबर कंसीडर है, बस इंटीजर्स में डिफरेंस इतना होता है क्लास के इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इसलिए हम इस सेट को मिडिल से लिखना स्टार्ट करते हैं जीरो से। तो जीरो के हमारे पास राइट साइड पर सारी पॉजिटिव काउंटिंग जाती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, और उसके लेफ्ट साइड पर हमारे पास जो है वो सब नेगेटिव काउंटिंग होगी, जस्ट लाइक -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। Now, here we write the integers in the form of descriptive, just like capital Z is equals to the set of integers, or we write the set of all integers. Now, the fourth set is E, capital E is equals to 2, 4, 6 and up to so on. ओके यहाँ पर ये कैपिटल ई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच आर डिवाइडेड बाय 2 इजीली। नाउ जस्ट लाइक दैट 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन, और दीज आर द मल्टीपल ऑफ 2s। ओके, here we write capital E is equals to 2 4 6 and up to so on, just like we write this set in a descriptive form. Here we write E is equals to the set of even numbers, or we write the set of all even numbers. Now the fifth one is O. Capital O is equals to 1, 3, 5 and up to so on. Okay, this capital O is representing the set of odd numbers, and here we write this set in a descriptive form, just like capital O is equals to the set of odd numbers. Okay, this one is called Z prime. Z prime is equals to so on and -3 -2 and -1. ना अब ये क्या चीज आपको यहाँ नजर आ रही क्लास, यहाँ पे इन्होंने बस सिर्फ जरा से ये काम किया है कि इन्होंने इंटीजर्स को ब्रेक कर दिया है ना नेगेटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स को इन्होंने z प्राइम से शो किया। यहाँ पर z प्राइम और द नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे शो किया, क्योंकि आपको यहाँ नजर आ रहा हो कि जीरो पर ये आकर ब्रेक हो जाता है, यानी कि -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन लिखेंगे हम इसको उसी तरह से। ये नहीं है कि आपने इसको राइट साइड लिखना शुरू करना, नो, ये लेफ्ट साइड ही जाएगा। Okay, this one is called the set of negative integers. Okay, the seventh one is P. Capital P is equals to 2, 3, 5, 7, 11. Okay, these are the set of the prime numbers. Prime numbers are those numbers which having the set of, okay, two divisors, just like itself and the one. प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनके पास सेट ऑफ डिवाइजर्स में जो है वो टू नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 हमारे पास होता है और एक होता है हमारे पास वही नंबर इटसेल्फ। जस्ट लाइक अगर हम 2 की बात करें तो 2 अगर आपने फोकस किया हो, गौर किया हो, तो 2 इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ 2, एंड 2 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 1। Okay, 3 is also divided by itself and 3 is also divided by 1. 5 is also divided by 1 and also 5 is also divided by itself. अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने itself डिवाइड होते हैं यहाँ पर, ये इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। So such kind of numbers are called the prime numbers. Here we have to write the tabular form, just like capital P is equals to 2, 3, 5, 7 and 11. Okay, here we write P is equals to the set of prime numbers. Now the eighth one is C. Capital C is equals to 4, 6, 8, 9 and 10 and up to so on. Okay, what is the C? This is C is called the composite numbers. Now composite numbers are those numbers which are also divided itself and also divided by the other numbers, just like this. अगर हम 4 को कंसीडर करें स्टूडेंट, यहाँ पर समझिएगा थोड़ी सी इस बात को कि 4 अगर आपको पता हो तो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, और 4 itself 4 से भी डिवाइड होता है। तो such numbers is called a composite numbers, just like 4, 6, 8, 9, 10 and up to so on. There are lots of numbers which are divided itself and also one and also with the other numbers. So such kind of set is called a composite numbers, or the set of composite numbers. In a descriptive form we write in the form of the statement, just like the C is equals to the set of composite numbers. Okay, now students will move towards the another topic of the lesson. Okay, these are the types of the sets. अभी हमने आपको representation of the sets बताया, सेट्स को किस तरह से लिखते हैं वो बताया ना। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द सेट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेट्स। द फर्स्ट वन इज द फाइनाइट सेट्स, सेकंड वन इज द इनफाइनाइट सेट्स, एंड द थर्ड वन इज द एम्प्टी सेट और द नल सेट। ओके, वन बाय वन हम इन एग्जांपल्स को शेयर करेंगे, आपको टाइप्स को शेयर करेंगे आपके साथ। ओके, द फर्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट। हाउ वी डिफाइन इनफाइनाइट सेट्स? ओके, a set having infinite number of elements is called, sorry students, this one,
finite numbers, a set having finite number of element is called a finite set. I repeat, students, listen me carefully. A set having finite numbers of element is called a finite set. क्या मतलब इस बात का? finite मतलब those all the members of a finite set can be counted. यानी कि ये ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स को या जिसके मेंबर्स को हम काउंट कर सकेंगे. जस्ट लाइक हियर वी हैव अ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल वी हैव कैपिटल A इज इक्वल्स टू स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक सेट को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और उसके अंदर के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं. ओके स्टूडेंट, एज यू सी यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को. कितने एलिमेंट्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं? 1 2 3 and 4. Okay, 4 elements are here. Now in the next example, here we have the set B, which is right here 1 2 3 4 5 6 and up to 100. Okay students, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने बीच में जो नंबर्स आ रहे थे वो हमने नहीं लिखे, उसकी जगह पर हमने 3 डॉट्स शो किए, लेकिन हमारा सेट एंड हुआ हुआ है. कहाँ पर एंड हुआ है? 100 पे जाके एंड हुआ है. ठीक है, हमने बीच में कोई भी नंबर नहीं लिखा, मिडिल में कोई नंबर्स नहीं लिखे, लेकिन हमने लास्ट नंबर शो किया. यानी कि मुझे ये बताना है कि मेरा सेट ये कहाँ एंड हो रहा है? 100 पर एंड हो रहा है. इट्स मीन दैट इट इज अ फाइनाइट सेट. फाइनाइट कैसे है? काउंटेबल क्यों है? आप कहोगे मिस हम तो उसको काउंट कर सकते हैं कि बीच का नंबर मिसिंग है, लेकिन क्योंकि हम सबको पता है स्टूडेंट्स, हम सबको काउंटिंग आती है, हम उसको काउंट कर सकते हैं. हमें ये बात पता है कि अगर हम 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को काउंट करेंगे तो ऑब्वियस दे आर 100 नंबर्स. अगर यहाँ पर काउंटिंग 101 से लिखी हुई होती, 101 से लेकर 200 तक लिखी होती, तब भी हम अगर उन मेंबर्स को, उन एलिमेंट्स को काउंट करते, तब भी वो 100 मेंबर्स या 100 एलिमेंट्स बनते. ये बात सबको समझ में आ रही स्टूडेंट? हम ये नंबर्स को काउंट कर सकते हैं भले वो बीच में नंबर मिसिंग हुए. सपोज सिर्फ ऐसे नंबर कि जो कि सीक्वेंस में नहीं आ रहे हो. कोई ऐसे नंबर हो कि उन्होंने बिल्कुल, जैसे आपने कुछ भी नंबर, आपने रैंडमली कोई नंबर उठा के रख दिया और आपको नहीं पता कि ये किससे बिलोंग करता है, ना वो नेचुरल नंबर्स हो, ना वो ऑड नंबर्स हो, ना वो इवन नंबर्स हो, ना वो प्राइम नंबर से लिंक करें, मतलब कुछ भी नंबर वो, तो आप उन नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते. ऑब्वियसली जब उसका सेंस नहीं बनता कि वो नंबर किस सेट से बिलोंग करते, तो हम उस ऐसे सेट को तो काउंट नहीं कर सकते. लेकिन क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है, उन्होंने देखे शुरू में स्टार्टिंग में आपको इतने सारे नंबर शो किए, इट्स मीन दैट कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारी काउंटिंग सीक्वेंस के अंदर है. तो हम इसको बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं. अगर हम 1 से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 100 पे एंड करेंगे, इट्स मीन दैट कि उस सेट के अंदर हमारे पास 100 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. Now we move towards the another type of sets, which is infinite set. Okay, here we have to define the infinite set. A set having infinite numbers of element is called a infinite set. Okay, a set having a infinite numbers of elements is called a infinite set. Infinite का मतलब क्या हो गया? ऐसे numbers, ऐसे members of elements जो कि count नहीं हो सकते. किस तरह से? For example, here we have a set 1 2 3 4 5 and up to so on. अब देखिए स्टूडेंट, सेम सेट उसी जैसा है जो मैंने अभी आपको पहले समझाया, लेकिन इसका लास्ट नंबर हमें कोई भी नहीं गिवन, ना इसमें 100 50 10 कुछ नहीं गिवन, हमें एंडिंग कहीं नहीं हो रही, लेकिन ये सेट क्लोज है. ठीक, आपको यहाँ पर एंडिंग नंबर कोई भी नहीं गिना, आपको नहीं पता, आपने 1 2 3 4 5 गिना, अब आपको नहीं पता कि उन्होंने काउंटिंग कहाँ एंड की. मे बी पॉसिबल है कि वो 6 पे आके स्टॉप कर दें, मे बी पॉसिबल है वो 7 पे आके स्टॉप कर दें, तो वो कहाँ स्टॉप करेंगे हमें नहीं पता. जिसने ये सेट लिखा है, जिसने हमें एग्जाम्पल दी है, हमें नहीं पता कि उसके माइंड में क्या चीज चल रही है, उसने सेट को कहाँ ला के स्टॉप किया. सो सच काइंड ऑफ सेट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट मीन्स वी कांट काउंट दैम, we can't count the elements or the members of this set. Okay student, just like this, d is equals to, ये डॉट्स लिखे हुए हैं -2 -1 0 1 2. अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको पहचानेंगे स्टूडेंट्स, तो दिस सेट इज कॉल्ड द इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर्स तो मैंने आपको टेबल में समझाया था, जो कि आपके पास पेज नंबर 5 पर बना हुआ है. तो देखिए ये सेट ऑफ इंटीजर्स ही आपको यहाँ पर गिवन है. ठीक, जिसमें हमने सेंटर से स्टार्ट किया 0 से, इस तरफ हमारे पास राइट साइड पर पॉजिटिव काउंटिंग है और लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव काउंटिंग लिखी है. लेकिन दोनों साइड्स पर अगर आप गौर करें तो ये काउंटिंग कहीं भी एंड नहीं हो रही. ये भी पॉसिबल है कि ये 1 2 3 4 और 1000 पे चला जाए, 10,000 पे, कहीं पर भी जाके स्टॉप हो सकता है स्टूडेंट, तो हम इसको नहीं काउंट कर सकते. इससे नेगेटिव काउंटिंग हमारी कहाँ एंड हो रही है हमें ये भी नहीं पता. तो ये सेट्स ऑफ इंटीजर भी जो है वो हमें नहीं पता कि ये कहाँ खत्म हो रहा है. तो सच काइंड ऑफ सेट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट. Okay students, we move towards the third type of set, which is the empty set or the null set. Okay, empty set और null set कैसे होते हैं? A set which contain no element is called a set. An empty set or a null set. Okay, ऐसा set कि जिसके अंदर कोई element नहीं होता is called an empty set or a null set. Okay, it is denoted by
दिस फाई, ये किस तरह से बना है, ये आप जीरो बनाकर और उसमें एक ऑब्लिक लगाएंगे तो हमारे पास ये सिंबल बनेगा. दिस सिंबल इज कॉल्ड, दिस सिंबल इज यूज फॉर द नल सेट, और वी राइट ओनली द ब्रेसेस जस्ट लाइक दिस द एम्प्टी ब्रेसेस, जैसा कि हम यहाँ पर इसमें एम्प्टी ब्रेसेस शो कर देंगे इस तरह से, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी सेट को. मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल स्टूडेंट समझाई थी वहां पर कि जस्ट सपोज दैट कि अगर हम यहाँ पर यही सपोज कर लें, एक छोटी सी बात कि इस वक्त जो आपकी क्लास हो रही है प्रिंसली बॉयज स्टूडेंट्स की क्लास हो रही थी, प्रिंसली बॉयज से अगर यहाँ पर हम नोट करें तो आई थिंक यहाँ पर कोई भी गर्ल्स अटेंड नहीं कर रही है क्लास. ठीक, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप स्टूडेंट में से कोई गर्ल्स ऐसी है जो क्लास अटेंड करी, तो ऑब्वियस कि यहाँ पर कोई भी गर्ल क्लास अटेंड नहीं करी एज ए स्टूडेंट, तो ऐसा सेट भी हमारे पास एम्प्टी सेट होगा. Okay, we move towards the symbols. Now here I show some symbols with their meaning. Just like this, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ये symbols शो किया था. Okay, this symbol is used for the element of. ये सिंबल अगर आपको यहाँ नजर आ रहा है स्टूडेंट, तो इस सिंबल को हम किस लिए यूज करते हैं, हम इस सिंबल को यूज करते हैं एलिमेंट ऑफ के लिए. यानी कि दिस इज बिलोंग्स टू, मैंने आपको वहां पर बिलोंग्स टू बताया था, तो आप बिलोंग्स टू भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट ऑफ भी यूज करते हैं. जस्ट लाइक दैट कि अगर कोई एलिमेंट मेंबर है किसी भी सेट का, तो हम वहां पर इस तरह से लिख सकते हैं जस्ट लाइक वन इज अ एलिमेंट ऑफ द सेट ए, और वन इज बिलोंग्स टू द सेट ए. तो यहाँ पर इस सिंबल के मीनिंग होते हैं एलिमेंट ऑफ, और वी से दैट सिंपली वी से दैट बिलोंग्स. ओके, दिस वन सेम सिंबल बना हुआ है, लेकिन उन्होंने एक ऑब्लिक से इसको कट कर दिया है. इसका ये मकसद है, जब आप ऑब्लिक से कट कर देंगे इसका मतलब नॉट एलिमेंट ऑफ. ओके स्टूडेंट्स, अगर स्टार्टिंग में आपको याद हो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स लिखे हुए थे, वहां 5 नहीं था. मैंने आपसे बात बोली थी कि अगर हम वहां लिखते 5 इज बिलोंग्स टू 8, तो वो बात हमारे लिए ट्रू नहीं होगी. लेकिन हम वहां पर इस तरह से भी करते लिख सकते हैं कि 5 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए और द अनदर सेट. Okay, this symbol is used for the proper subsets. आगे हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट्स को कि किस तरह हम डिफाइन करेंगे, कहाँ यूज करेंगे. ओके, दिस सिंबल इज यूज फॉर द सबसेट ऑफ. ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, सुकून से आराम से आप रहिएगा, हम देखेंगे आगे सब चीजों को. ओके, दिस सिंबल इज यूज फॉर इज नॉट सबसेट ऑफ. ओके, एंड दिस सिंबल इज यूज फॉर कंटेन्स और प्रॉपर सेट. ओके, now here we discuss subset and superset. What are subsets? Let A and B are two sets. If every element of set A is an element of set B, then A is called the subset of B. Subset is denoted by this. अब मैंने आपको symbols में भी ये चीज दिखाई कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि A is a subset of B. If small a belongs to A, is also A is belongs to B. यानी कि हम यहाँ पर किस तरह से शो करेंगे स्टूडेंट, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड बी, और दोनों में हमारे पास सेम एलिमेंट मौजूद हैं, जस्ट लाइक दोनों में ए एंड ए आर द सेम element in the both set. So here we have the set is also called the A is a subset of B. Now here we have a superset. If every element of set A is belongs to B, then B will be the super subset of A. ओके, यहाँ पर क्या चीज समझा रहे हैं, आपको ये चीज समझा रहे हैं कि हर एलिमेंट ए का बिलोंग करेगा बी से. सपोज दैट कि हमारे पास अगर ए सेट में एलिमेंट है ए एंड बी, तो हम और वही दोनों ए एंड बी बिलोंग्स करते हैं बी सेट से, तो हमारे पास जो वो सेट ए होगा वो कहलाएगा, या वो सच सेट इज कॉल्ड द सुपर सेट. ओके, आगे सी एग्जांपल्स होंगी कुछ स्टूडेंट्स, फिर हम उसमें देखेंगे. Okay, the next one is proper and improper sets. Now what are proper sets? If A is equals to A B C D and B is equals to B C A B C. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि A सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और B सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं. Then B is a proper subset of A and it is denoted by B is a proper subset or a subset of A. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लास आप बी में वो तमाम एलिमेंट मौजूद हैं जो कि सेट ए में लाई कर रहे हैं. ओके, as you see A is present in set B and B is also present in set B and C is also present in set B. So B is a proper subset of A.
Now, the next one is improper subset. If capital A is equals to 1, 2, 3, 4, and capital B is equals to 2, 4, 3, and 1. Now, then B is an improper subset of A, and also A is an improper subset of B. It is denoted by B is an improper subset of A, and also we write that A is an improper subset of B. स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखिए तो हमारे पास दो सेट्स हैं A एंड B एंड हैविंग द ऑल द एलिमेंट्स आर सेम 1 2 3 4. यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर. तो सच काइंड ऑफ सेट्स जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स सारे सेम होंगे, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि उसका सीक्वेंस उसमें जो उनको लिखने का जो तरीकेकार है वो उनको आगे पीछे करके लिख दिया हो. तो ऐसे सेट्स, ऐसे दोनों सेट्स हमारे पास कहलाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स. जस्ट लाइक हियर वी हैव टू राइट द B is a improper subset of A and also we write that A is a improper subset of B. क्योंकि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई भी सेट किसी भी दूसरे सेट का इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है यहाँ पर. Now the next one is equality of sets. Now two sets A and B are said to be equal. कब equal होते हैं? If every element of set B is also an element of set A and every element of set A is also an element of set B. Just like if we have capital A is equals to 2, 4, 6 and B is equals to 4, 6 and 8. Then we say that A is equals to B. As you see students, both set having the same element. यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब हमारे पास सेम हो जाते हैं, जब हम ऐसे सेट्स को कहते हैं कि ये इक्वल सेट्स हैं. अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, मे भी पॉसिबल है कि आपने जो हमने इससे पहले इम्प्रॉपर सबसेट बताया और आपको इक्वलिटी. इम्प्रॉपर सबसेट्स में एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पर देखो क्लास के 1 2 3 4 एंड 2 4 3 एंड 1 एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है. कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो एक दूसरे से अलग हो, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास सेम आ रहे हैं. लेकिन इक्वलिटी ऑफ सेट्स में अगर आप यहाँ फोकस करें तो 2 4 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 4 6 एंड 8 आ रहा है. किस तरह से हमने इसको इक्वल कहा? बिकॉज हियर वी हैव 3 elements and B set is also having 3 elements, so the number of elements are same in the both sets, so we say that A is equals to the B. Okay students, here we have the home task. आपसे हम होम टास्क शेयर करेंगे. जो जो मैंने आपको आज की लेसन में टीच किया है वो कोशिश कीजिएगा कि अपनी कॉपीज में आप उसको कर लें. ओके, होम टास्क इज फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 1.1 which is present on the page number 6 and 7. Do practice question number 1, 2, 3 and 5. And from the exercise number 1.2 which is on the page number 13, you only do the question number 1. अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर आपको बात केयरफुली सुननी है मेरी, वो ये कि हमने यहाँ अपना नया सेशन स्टार्ट किया है फॉर द एकेडमिक सेशन 21 एंड 22. तो आपको न्यू कॉपीज में अपने काम करना है. सबसे पहले आप टाइटल पे सबसे पहले आप फेस शीट बनाएंगे, इसमें आपका नाम, आपका फादर नाम, आपकी क्लास, सेक्शन होगा लिखा हुआ. और सेकेंडली फिर आप वहाँ पर मिड टर्म का टाइटल पेज बनाएंगे. then you have to make the title page for this chapter, means the chapter number 1 sets, और उस पर आज की नीचे डेट होनी चाहिए, स्टार्टिंग डेट आज की होनी चाहिए. उसके बाद आप वहां से काम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज से. इस लेसन में मैंने आपको जो डेफिनेशंस वगैरह पढ़ाई हैं, जो भी एग्जाम्पल्स करवाई हैं, वो आपको कॉपीज में नहीं करनी है स्टूडेंट्स. ओके, समवन आस्क के आमना खान आस्क समथिंग. ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जिनके पास बुक्स नहीं है वो कोशिश करें कि बुक्स परचेज कर लें. और दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स काम आपने बहुत ही नीटली करना. मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने आपको जितनी डेफिनेशंस या जो भी यहाँ पर ऐसा काम जो कि समझाने वाला था वो आपको नहीं करना. आपने सिर्फ होम टास्क, यहाँ मैं जो स्लाइड शो कर रही हूँ आपको होम टास्क की, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपको कॉपीज में करना है. आपको सब एग्जाम्पल्स और ये सब कुछ नहीं लिखना. आपने सबसे पहले फेस शीट बनानी है, उसके बाद मिड टर्म का टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद अपने चैप्टर नंबर 1 सेट्स का टाइटल पेज बनाना है, और उसके बाद आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 की हेडिंग डालनी है और उस पर ये काम करना है. आपने कोई डेफिनेशन शो नहीं करनी, कुछ और एक्स्ट्रा काम शो नहीं करना. ओके, समवन हादिया जीशान आस्किंग मी मिस बुक में से काम करना है. हाँ बेटा, ये एक्सरसाइज आपकी बुक में से ही है, मैंने इसलिए पेज नंबर भी मेंशन कर दिया आपको कि आपको ढूंढना ना पड़े. एक्सरसाइज नंबर 1.1. अच्छा, समवन आस्क मिस दिस क्लास इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. बेटा ये बात तो अभी हमें खुद भी नहीं पता.
दूसरी चीज ये कि YouTube के चक्कर में ना रहें, कोशिश करें, मैं आपसे बहुत देर से ये होम टास्क की स्लाइड आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे ज्यादा अहम चीज आपके अंदर आपका ये होम टास्क है। आपको सब कुछ समझने वाली चीज थी वहां पर कि आप समझते कि मैंने आपको किस तरीके से बताया है। जो चीज समझने वाली होती, जहां मैं एग्जाम्पल्स आपको समझा रही होती, वहां आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत सारा काम आपकी बुक में मौजूद है, एग्जाम्पल्स भी मौजूद है, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो चीजों को। आप सेट्स को समझेंगे, ज्यादा इसकी मुश्किल नहीं होंगे आपके पास एक्सरसाइज, थोड़ी इजी एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस या बहुत ज्यादा एग्जाम्पल वर्क आपसे शेयर नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, ओके यहाँ पर 6 की कॉपी में, अच्छा कोई यहाँ पर पूछ रहा है कि मिस ये 6 की कॉपी में काम करना है। हाँ बेटा, मैंने आपको अभी यही बताया है कि अब आपको जो न्यू कॉपीज आपके पास थी न्यू सेशन की कॉपीज अब आपने स्टार्ट करनी है। उसमें सबसे पहले आपने फेस शीट बनानी है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा मुस्तफा पूछ रहे हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5। बेटा देखिए, आज की लेसन में जितना मैंने पढ़ाया ना, सिर्फ उससे रिलेटेड आपको होम टास्क है, सब कुछ उठा के आपको होम टास्क में नहीं दे दिया मैंने। आप जितना मैंने आज आपको कवर करवाया है लेसन में, वही आपको दिया है। बाकी नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह उस पर करेंगे। अच्छा, आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। हाँ, आप क्यों नहीं हेल्प ले सकते हैं, आप इंटरनेट से बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। कुछ पूछना बेटा आप पूछें, डायरेक्ट सिर्फ लिखे नहीं कि मुझमें कुछ पूछना है। अच्छा, आउटलाइन करनी है, आउटलाइन के लिए बेटा एक पेज छोड़ दीजिएगा। जब इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो हम आपको आउटलाइन खुद लिखवाएंगे, ठीक है। आउटलाइन के लिए एक पेज आप छोड़ दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये चीज याद दिलाई कि आउटलाइन, तो आउटलाइन के लिए आप एक पेज को छोड़ दीजिएगा। अच्छा भाई, जिसके पास कॉपी नहीं है तो प्लीज कॉपीज परचेज कर लें। एक कॉपी में काम नहीं करना बेटा, ये आपकी न्यू सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो आपने अलग अलग कॉपीज में काम करना है। क्लास 5 की फाइनल टर्म की कॉपी में नहीं करना। यहाँ पर अब आपका 6 का न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया है। अब आपने 6 की जो न्यू कॉपीज है उसमें अपनी फेस शीट बनानी है, मिड टर्म का टाइटल पेज बनाना है और इस चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है। एक पेज आप आउटलाइन के लिए छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आपने सिर्फ डायरेक्ट एक्सरसाइज से काम स्टार्ट करना है। वहां पर कोई आपने डेफिनेशन वगैरह मेंशन नहीं करनी है। हाउ वी गेट द कॉपीज, ओके। आहिल आमिर, आप बेटा स्कूल आइए, आपका सेट यहाँ पर होगा, आप वहां से आके रिसीव कर लीजिए। ओके, और क्या पूछ रहे हैं मिस, कॉपी के पेजेस बता दें, सिलेबस बुक है नहीं मिल रही। कॉपी के पेजेस कौन से बताने थे। अच्छा, 300 वाली कॉपी होती है, 300 वाली ले लें, 240 वाली कॉपी ले लें, कोई भी ले लें बेटा, इससे पतली कॉपी नहीं लीजिएगा। ओके, व्हाट शुड वी डू द क्लास 5 कॉपी। क्लास 5 की कॉपी को आप संभाल के रखिए, जिसमें आपने होम टास्क किया। जब आप स्कूल अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो काम भी आपका चेक करेंगे। फेस शीट के बाद वाले पेज पे क्या लिखना है, मिड टर्म का टाइटल पेज बनाना है आपने वहां पर। ओके, मिड टर्म का टाइटल पेज बनाना है। आप सबसे पहले तो आपने फेस शीट बनानी है, इसमें आपका नाम, आपका फादर नेम, आपकी क्लास, सेक्शन एंड समथिंग, इस तरह सब कुछ होगा। और उसके बाद आपने मिड टर्म का टाइटल पेज बनाना है। मिड टर्म के टाइटल पेज के बाद आपको चैप्टर नंबर 1 सेट्स का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद आप डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 1 का काम स्टार्ट करेंगे। कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी आपने, कोई ऐसा समझाने वाला काम उसके अंदर नहीं करना, कोई एग्जाम्पल नहीं लिखनी। आप सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल से हेल्प देंगे टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के पेज नंबर मेंशन यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। ओके, ओके, होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर काफी हद तक बात समझ में आई होगी। हाँ, ये जिसने लिखा है यहाँ पर एकेडमिक सेशन 2020-21 इसी तरह से लिखना है, लेकिन बेटा हम एकेडमिक सेशन नहीं लिखते, हम मिड टर्म लिखते हैं, ठीक है। मिड टर्म और इसके बाद सेशन यही लिखोगे, इसी तरह से लिखोगे। मरियम सही कह रही हैं आप, लेकिन बस मिड टर्म लिखिएगा। मिस वी कैन डू इन रफ कॉपी फॉर, हाँ हाँ बेटा, आप रफ कॉपी, अगर आपको नहीं अभी मिल रही कॉपी फौरन से और आप करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट यू, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात। आप रफ कॉपी में अपना काम करके रखोगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। उससे ये है कि आपका काम अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि सही नहीं है, तो आप उस वक्त भी बाद में किसी को दिखाकर काम सही करके भी कॉपीज में कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अपने काम को मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा, क्लास अपनी कॉपीज को मेंटेन कीजिएगा। पेज शीट आपकी होनी चाहिए, उस पर आपके टाइटल पेज प्रॉपरली होने चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिलहाल आप पेंसिल से वो सब चीजें बना लीजिए, लेकिन ये एक्सरसाइज आपने इंक पेन से करनी है अपनी कॉपीज में। ओके सम्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स। और स्लाइड्स जो करनी है, सारी स्लाइड्स तो बहुत देर हो जाएगी। ओके ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।